Hi everyone, we're live on the Cininfo um, session, Insta live session on acting in theatre versus films, films versus theatre. We have two speakers today. I'm just going to add them to the call right now. Just give me a second. And thank you so much everyone for joining. We have Gautam today, Gautam Kishan Chandani. I'm sure you would have heard and seen them specifically. So, very excited to have both of them talk today. And once again, thank you so much for joining us. Would request, in case there is any audio issue, please do write it on the chat, and we will definitely make sure that we have worked around it. Hi, Gautam, and we are expecting Pramod to join very soon. Thank you so much. Waving to everyone over here. Hi. Hi, I think somebody else has joined this call. Sorry, this is a private call. We'll need to have you leave. We are just waiting for Gautam and Pramod to join this. Please give us a minute. In case you have any questions, please do put it on the chat and we will be able to. Hi, Pramod. Hi. Hi. Can you hear me? Yes, of course. I can hear you very clearly. I'm going to try and add Gautam once again. I think the invitation went out and probably slipped through the cracks. We can hear you. All right. Yeah, I can see Hi, someone. Pramod. I can see a laptop or something. We need to. Hi. There you are. Hi, guys. Pramod. Hi, Tina. Hi. So, Gautam, everyone knows you. Pramod, everyone knows you. But it'll still be great if you could just introduce yourself, like in a short bit. And I will soon be on mute because this entire live is for in conversation with Gautam and Pramod. Although we put up the topic as theatre and acting, and we would request it to be in Hindi. But please feel free to take the topic in any direction that you feel. Most of our members were there as part of Cininfo and other artists who are there as part of your following, your fan followers would like to hear about. So over to you, Gautam, and over to you, Pramod. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Pramod, welcome to Cininfo. Thank you. बहुत यहाँ पे आने के लिए and आपका experience, आपका knowledge about film acting, theatre acting. It would be lovely if you can share it with the Cininfo, followers of Cininfo, जो गेन कर रहे हैं नॉलेज सिनेमा के बारे में. तो प्रमोद को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ. प्रमोद और मैं अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए मिले थे. प्रमोद ने वो उस पे रिसर्च किया था और आई थिंक कहानी लिखी थी उसकी, जिसपे अनुराग ने स्क्रीन प्ले लिख के डायरेक्ट किया था. इट वाज आई थिंक 2007 या 8 की बात है मेरे ख्याल से. 2007. और प्रमोद आई थिंक तब एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन टिम सपल का टॉपिक ऑफ स्कॉटिश. सॉरी यस, उनका एक बहुत ही अक्लेम्ड बाहर के डायरेक्टर की टूरिंग प्ले थी मेरे ख्याल से. आप वर्ल्ड वाइड गए थे, उसके साथ ट्रैवल किया था अपने नाटक के साथ. और तब से मैं जानता हूँ उनको. एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सुपर टैलेंट, बहुत ही अच्छे इंसान है. और इट्स बीन अ वेरी, बहुत ही अच्छी दोस्ती रही है हम दोनों की. और
ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेब में तो बहुत ही अच्छा, मिर्जापुर से लेके वो हुमा कुरैशी की सीरीज, हाँ नाम मैं भूल गया, शिट, महारानी महारानी महारानी, सॉरी, महारानी, और मिर्जापुर में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, और थिएटर में भी बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। अब उनका एक प्ले आ रहा है ये वीकेंड पे, प्लेज भी डायरेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं प्लेज में, तो इन्हें दोनों मीडियम्स का बहुत अच्छा आइडिया है, थिएटर का और सिनेमा का। तो आई थिंक जो टॉपिक है आज का, उसमें आई थिंक एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं टुवर्ड्स थिएटर एक्टिंग वर्सेस सिनेमा की एक्टिंग। आपको तो दोनों का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा बहुत। so yeah, so how was it, how did your theater journey begin? हाँ, कैसे हुई शुरुआत आपकी थिएटर में? बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि मैं हूँ बहुत छोटे शहर का, ऊपर से जो मेरी पढ़ाई हुई वो नैनीताल के एक रेजिडेंशियल स्कूल से हुई, बिरला विद्या मंदिर से, और बचपन से ही घर से बाहर भेज दिया गया था। तो 5वीं से लेके 12वीं तक हॉस्टल में रहे नैनीताल में, बड़े ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। पर जब वहां से निकले तो ये हुआ कि जिंदगी अगर जीनी है और अपनी शर्तों पर जीनी है तो थोड़ा सा तो बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि करना क्या है। क्योंकि मैं बहुत ही लॉस्ट सा एक इंसान था जिसको पता नहीं था कि करना क्या है जीवन में। तो ये हुआ कि इंटरमीडिएट करके निकले थे, तो ग्रेजुएशन कहीं से तो करना है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्राइसिस असल में जीवन में शुरू हुई। बिजनेस क्लास फैमिली थी और बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो वन फाइन डे 1996 में घर से बाहर निकले और बम्बई आ गए। बम्बई में जैसा कि हर किसी के साथ होता है, सर्वाइवल के लिए नौकरी करनी शुरू की, और नौकरी करते करते नाटक देखने का शौक पैदा हुआ। तो शाम को ऑफिस से निकलने के बाद, चर्च गेट में उस समय मैं नौकरी करता था, शाम को निकलने के बाद ऑफिस से ये होता था कि भाई घर जाके करेंगे क्या, तो कुछ करना चाहिए। तो सिनेमा देखने का शौक था, छोटी शहर से थे तो सिर्फ सिनेमा ही एक एक्सपोजर होता था और कुछ था नहीं। तो कुछ दिनों में हम सिंगल स्क्रीन थिएटर की वजह से सब कुछ देख चुके होते थे। महीने के पहले 10 दिनों में ही सारा सिनेमा हम देख डालते थे, अंग्रेजी हो हिंदी हो जो भी था। पर ये हुआ कि भाई अब उसके बाद के बाकी बचे हुए दिनों का करेंगे क्या। तो किसी ने बोला कि भाई थिएटर होता है, नाटक होते हैं, जाके वो देखिए आप। तो उसी वजह से वक्त काटने के ही कारण हम पहुंचे पृथ्वी थिएटर जुहू में, और वहां पे मैंने पहला नाटक देखा। पंडित सत्यदेव दुबे जी के एक स्टूडेंट है सुनील शानबाग जी, उनका एक ग्रुप है अर्पणा, उनके शोज चल रहे थे। उस शो में आजकल जो बहुत नामी कलाकार हैं, कुमुद मिश्रा थे, जैमिनी पाठक थे, आशुतोष राणा थे, और कुछ बड़ी अच्छी खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरीज परफॉर्म कर रहे थे वो लोग पृथ्वी थिएटर स्टेज में। जब मैं घुसा देखने के लिए तो मैं गया था कि शायद कुछ एंटरटेनमेंट होगा, कुछ देखूंगा, पर जब मैं बाहर निकला तो दिल में ये था कि यार ये बड़ी कमाल की चीज देखी है मैंने, ये इतनी मजेदार चीज है कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए। और शो खत्म होने के बाद मैं डायरेक्टर साहब से मिला और उनको हंसी आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि करना क्या चाहते हैं आप हमारे साथ ज्वाइन करके, क्योंकि मैंने उनसे सीधे बोला कि भाई आपके साथ थिएटर करना है। तो बोले कि भाई थिएटर करना है पर तुम करोगे क्या लाइफ में। तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा, उन्होंने पूछा करते क्या हो, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे नौकरी करता हूँ और मैं शौकिया आपके साथ थिएटर करना चाहता हूँ। तो बोले ये शौकिया तो ठीक है पर इससे सर्वाइवल होने वाला नहीं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, वो मैं सर्वाइवल के लिए नौकरी कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ थिएटर करना चाहता हूँ। और वो दिन था, वो पहला दिन था जब मुझे बिल्कुल पता नहीं कि एक्टिंग क्या होती, थिएटर क्या होता है, स्टेज क्या होता है। बस मैं एक नाटक देख के निकला बाहर और उसने मेरा जीवन बदल दिया, उसके कलाकारों ने, उसकी परफॉर्मेंसेस ने। और मैं जबरदस्ती करके उनको बोला, मैंने कहा कि मैं आता हूँ, आप जो काम मुझसे करवाएंगे मैं करूंगा,
चाहे वो एक्टरों की सेवा हो, वड़ा पाव लाना हो, चाय पिलानी हो, आप जो चाहे मुझसे काम करवा सकते हैं। बस मैं आके बैठना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इस तरह से रिहर्सल्स में जाना, उठना बैठना शुरू हुआ, एक्टरों को देखना शुरू हुआ, और ये शौकिया शुरू हुआ था। इसको एज अ करियर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको एज अ पेशा लेके चलूंगा जीवन में। पर साल भर के अंदर अंदर वो नौकरी कब छूट गई और मैं थिएटर करने लग गया फुल टाइम, ये मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो इतना ऑर्गेनिकली हुआ। और धीरे 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 सर्वाइवल के लिए लोगों के लिए लिखना शुरू किया, स्क्रीन प्लेस लिखने शुरू किए डेली सोप्स वगैरह के लिए। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में लोगों के लिए साउंड ऑपरेट कर देता था नाटकों में, बैक स्टेज में कुछ हेल्प कर देता था। तो सर्वाइवल के लिए वो सब कुछ किया जो आमतौर पे हमारी फील्ड के लोग करते हैं। पर धीरे 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 थिएटर में एक्टिंग का सिलसिला भी चल निकला, और एक रोल एक एंट्री से होते होते आज मैं फुल टाइम एक्टर हूँ। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है कि इस तरह की शुरुआत हुई थी और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। इट्स एन एक्सीडेंटल फॉर्च्यून में भी। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी, आई थिंक, बिकॉज आपने हर एस्पेक्ट किया है, थिएटर का, सिनेमा का, राइटिंग हो, प्लेज में बैक स्टेज हो, साउंड, लाइटिंग, परफॉर्मिंग इन प्लेज वर्सेस परफॉर्मिंग इन फिल्म्स। इट गिव्स यू, आपको एक पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस देता है, जो विच मेरे ख्याल से आपको एक बेटर आर्टिस्ट बनाया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि आप उसके वजह से इतने अच्छे आर्टिस्ट बने हैं, आई थिंक, बिकॉज ऑफ सारी वो एक्सपीरियंसेस जो आपने गेन की थ्रू डिफरेंट फैसेट्स ऑफ थिएटर एंड सिनेमा, आई थिंक। राइट। और क्योंकि मेरे लिए मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरा बहुत क्लियर कट कोई रास्ता नहीं था लाइफ में कि मुझे यही करना है, यही बनना है। आजकल मैं लोगों को देखता हूँ कितना अच्छा फोकस होता है उनका लाइफ में, कि वो मेरे ख्याल से 10वीं 11वीं 12वीं तक आते आते उनको पता होता है कि पूरे जीवन भर करना क्या है। मुझे तो पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जिस कारण मैं और तुम मिले या अनुराग मिला मुझे, वो बहुत ही ऑर्गेनिकली हुई वो सब चीजें। सिर्फ सर्वाइवल के लिए कोई भी मुझसे आके कहता था ये करोगे, तो मैं बोलता था कि हाँ कर लूंगा। मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे और मेरा गुजारा हो जाता था और मेरा थिएटर की जर्नी चलती रहती थी। उसी सिलसिले में मैं वो स्लम्स में जाके, ऑब्जर्वेशन होम्स में जाके वो बच्चों के साथ काम करना शुरू किया मैंने, और वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। और वो कहानियां मैंने लिखी, और वो कहानियां लिख के मैं एक दिन पृथ्वी थिएटर में, ऐसे ही थिएटर पॉजिटिव प्रोग्राम होता था, उसमें पढ़ रहा था उन कहानियों को जो मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस के ऊपर लिखी थी। वो कहानियां पढ़ के जब मैं बाहर निकला तो अनुराग ने पकड़ लिया मुझे कि अरे बड़ी अच्छी कहानियां लिखते हो तुम। मैंने कहा नहीं, ये कहानियां नहीं है, ये मेरी लाइफ के साथ जुड़ी हुई पूरे एक्सपीरियंसेस है। तो बोले अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ मुझे क्या है। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे हमने शेयर किया मेरे एक्सपीरियंसेस, उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फिर वो बात आगे बढ़ी। तो आई थिंक मैं अनुभव जो थे जीवन में जो आ रहे थे उनको मैं एक्सेप्ट करता जा रहा था। मैं किसी को ना नहीं कर रहा था, अच्छे हो बुरे हो, मैं सिर्फ एक्सपीरियंसेस, आई थिंक वो जिंदगी में अनुभव बटोर रहा था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, फॉर्चुनेट हो या अनफॉर्चुनेट, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे एक इंसान के रूप में काफी कुछ सीखने को मिला। और उसी की वजह से बड़े शानदार लोग भी मिले, अनुराग कश्यप है, गौतम है, और निखिल आडवाणी हो, आंगन ट्रस्ट के लोग हो, ढेरों ऐसे शानदार लोग मिले, पंडित सत्यदेव दुबे हो, सुनील शानबाग साहब हो, मेरे थिएटर के ढेरों एक्टर्स, कुमुद मिश्रा से लेके नागेश भोसले से लेके, इतने सारे बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, उनके साथ इतना सारा वक्त बिताया, जिसने मुझे भले ही इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ना हो पर ऑलमोस्ट एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने को मिला, इस सिर्फ एक्सेप्टेंस की वजह से कि हाँ जो आएगा वो करते जाएंगे, फिर देखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ट्रेजेडी है कि वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, वो शॉर्ट फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, और बनाने का भी प्लान था, बात नहीं। इतनी खूबसूरत कहानी थी जो इतनी अच्छी आपने लिखी थी, और अनुराग ने इतना बढ़िया डायरेक्ट किया था। हमने सलाम बालक ट्रस्ट के 2 लड़के जो बहुत अच्छे एक्टर्स थे, फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से,
उनका उसमें से एक लड़का तो अभी सिनेमाटोग्राफर भी बन गया है। राइट। तो इतनी खूबसूरत कहानी थी और सैडली वो रिलीज ही नहीं हुई। लाइक आई होप इट रिलीजेस समडे, इट्स अ ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म। होपफुली होपफुली। होपफुली। यस। तो एनी कैन यू शेयर इनसाइट्स कि आपको थिएटर की एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग में क्या डिफरेंसेस, कैसे, मतलब थिएटर परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट अलग होता है। आई थिंक बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो थिएटर से ट्रेन होते हैं उनकी फाउंडेशन वहीं से होता है, बट Right. फिर एक अडेप्ट करना पड़ता है जब आप कैमरा के सामने आते हो। वहां थिएटर में आप एक लार्ज ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हो, आपको आपका थ्रो बहुत, प्रोजेक्शन बहुत जरूरी है ताकि हर कोई ऑडिटोरियम में सुन पाए कि आप क्या बोल रहे हो। और वही प्रोजेक्शन सिनेमा में जरा भी उसकी जरूरत नहीं होती। तो कैसे जस्ट काइंड ऑफ हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर पाए कुछ, या डिफरेंस ऑफ थिएटर वर्सेस कैमरा। जो चीजें देखिए मुझे जो समझ में आई है इतने सालों में, और मैंने सीरियसली स्क्रीन एक्टिंग शुरू ही की मेरे ख्याल से 2007 और 8 के बाद। तब तक हम इसी में खुश रहते थे कि थिएटर करते रहेंगे और लाइफ चलती रहेगी और ऐसे ही लाइफ बीत भी जाएगी। पर सर्वाइवल और फिर थोड़े से हैप्पी इंसिडेंट्स और कोई इंसिडेंसेस की वजह से ये स्क्रीन वर्क भी मिलता गया और करते गए। जो मुझे समझ में आया पिछले 12, 13, 14, 15 सालों के वक्फे में, वो ये है कि एक्टिंग का जो मुद्दा है वो दोनों ही मीडियम्स में सही एक ही जैसा है कि आपको इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ किसी एक किरदार को निभाना होता है, और जितनी ईमानदारी से, सच्चाई से आप उसको करते हैं वो दोनों ही मीडियम में झलकता है, पता लगता है ऑडियंसेस को कि हाँ कितना इन्वॉल्व है, कितनी सच्चाई है इसकी परफॉर्मेंस में या इस किरदार में। फर्क आता है सिर्फ टेक्निकलिटीज का, जहां तक मुझे समझ में आया है। थिएटर की अच्छी बात यह है कि कोई चीज शुरू करते हैं, अगर नाटक है या कोई एक ऐसी कहानी है या कोई एक ऐसी मोनोलॉग है कि वो शुरू होता है और एंड होता है। वो बीच में रुकने की जरूरत नहीं है कि अरे यहाँ गलत हो गया, चलो इसको ठीक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थिएटर की एक अच्छी बात यह है और चैलेंज ये है कि आप उसको स्टार्ट करते हैं और फिर परफॉर्मेंस को एंड करते हैं। वहां पे गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भूल जाए, कुछ रॉन्ग पॉजेज आप ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चलते जाते हैं। और कई बार ऑडियंसेस को पता भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ, उनको लगता है कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ परफॉर्मेंस था। थिएटर की दूसरी बात यह है कि आप उसके लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं फॉर दैट परफॉर्मेंस। महीने, 2 महीने, कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं किसी एक परफॉर्मेंस को तैयार करने के लिए। तो उसकी एक फिनिश, इसकी एक रिफाइनमेंट अलग होती है एज कम्पेयर टू जब आप स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में मुझे फर्क जो बेसिक समझ में आया है कि विजुअल मीडियम है तो वहां पे आप के चेहरे पर क्या हो रहा है, आपके किस शरीर के किस हिस्से पर कैमरे का फोकस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थिएटर में पूरे का पूरी बॉडी आपकी इज अ मीडियम जिसको ऑडियंस देख रही है। अगर उसमें से कोई भी चीज ऑफ है तो उनको पता लग जाता है कि इसकी चाल में कुछ गड़बड़ है, अरे इसका हाथ कुछ अजीब सा हिल रहा है, अरे इसके चेहरे पर भाव थोड़ा गलत है। वेयर एज कैमरा बहुत सारी चीजों को बचा लेता है और वो उस पार्ट पे ही फोकस करता है जिस पे उसको फोकस करना होता है। तो ये टेक्निकलिटी अगर आपको समझ में आ जाती है तो आई थिंक थोड़ा सा आपकी लाइफ इजी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन एक्टिंग। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल सही बोली वो है प्रोजेक्शन की, क्योंकि स्टेज पे जब आप होते हैं तो आपकी ऑडियंस काफी दूर होती है आपसे और काफी हाइट पर भी हो सकती है, काफी दूर तक हो सकती है, इसलिए आप प्रोजेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप एक तरह से कहें कि अगर जो स्टेज एक्टिंग है वो बहुत कुछ स्पोकन मीडियम है कि आप बोल क्या रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल वो मोनो एक्ट हो या माइम थिएटर हो या फिजिकल थिएटर हो, तब वो बात अलग है। पर अगर मैं स्पोकन थिएटर की बात करूं तो उसमें जो स्पोकन मीडियम है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपकी स्पीच कैसी है, आपका प्रोजेक्शन कैसा है,
वो बहुत मायने रखता है जब स्टेज एक्टिंग पे आते हैं। स्क्रीन एक्टिंग की का चैलेंज ये है कि आपको वो जो ट्रांजिशन है वो बड़ी तेजी से करना पड़ता है, और वो अगर आप स्टेज की एक्टिंग करके आए हैं और अगर आप उस स्टेज की एक्टिंग से बाहर नहीं निकले और स्टेज से निकलने के बाद आप स्क्रीन एक्टिंग के प्रोजेक्ट में जब आए और अगर आप अभी भी स्टेज एक्टिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड, क्योंकि हर चीज आपकी बड़ी हाइटेंड दिखाई देती है, हर चीज आपकी बड़ी हाइटेंड सुनाई देती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि थिएटर के एक्टर्स बहुत कभी कभी लाउड होते हैं, बिकॉज वो स्टेज से आ रहे हैं, इसलिए वो शायद वो एडजस्टमेंट, वो ट्रांजिशन पूरी तरह से कर नहीं पाते, क्योंकि कैमरा है और कैमरा जरूरी नहीं है कि आप ही कैमरे के पास जाए, कैमरा भी आपके पास आता है, और जितना कम आप करेंगे उतने अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन एक्टिंग। तो आपको बहुत कुछ थिएटर के मीडियम की चीजों को मिनिमाइज करते हुए, धीरे 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 कम करते हुए, प्रोजेक्शन वाइज भी, आपके जो एक्सप्रेशन है उनको भी, क्योंकि कैमरा कैचेज एवरीथिंग, वो हर चीज पकड़ता है, तो आपको वो चीजें मिनिमलाइज करते हुए, अब जो सो कॉल्ड आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्टिक एक्टिंग, आई थिंक वो रियलिस्टिक एक्टिंग का मतलब ही स्क्रीन वाइज ये है कि हम जब आमतौर पर बैठे हैं और अगर आप मेरे बिल्कुल सामने अभी स्क्रीन के सामने है, तो मैं कितना आपसे आम तौर पर जो आम जिंदगी है उस पे जुड़ पा रहा हूँ, बगैर थ्रो किए, बगैर लाउड जेस्चर्स किए, बगैर चीखे चिल्लाए। पर अगर यही सिचुएशन मुझे स्टेज पर करनी हो तो मुझे मेरा प्रोजेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है मेरे हैंड जेस्चर्स भी काफी बड़े करने पड़े अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। तो आई थिंक कम्युनिकेशन का डिफरेंस आई थिंक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी बात को कम से कम हिले हुए, कम से कम मतलब हाव भाव को बदले, चीखे चिल्लाए, आप अपनी बात कैसे कहें, कितनी शालीनता से कहें, कितने प्यार से कहें, वो इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप कितना लाउड जा सकते हैं, कितना नहीं। पर यह है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे कम से कम करके। तो स्क्रीन के लिए मुझे कई सालों तक लोगों ने यही बोला कि लेस इज मोर, कि आप जितना कम करेंगे उतना अच्छा लगेगा हमें, आप कम कीजिए। क्योंकि मैं भी उस ट्रांजिशन से गुजर रहा था और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अच्छा, इनका मतलब ये है कि भाव वही है पर उसको व्यक्त करने का ये माध्यम जो है उसमें आपको चीजें थोड़ी मिनिमाइज करनी पड़ती है, थोड़ी कम करनी पड़ती है, जो कि रोजमर्रा जिंदगी में हम आमतौर पर कर लेते हैं। पर क्योंकि आप स्टेज एक्टिंग से आ रहे हैं और स्क्रीन में आते हैं तो आपको लगता है कि अरे मुझे अभी भी वो ऊंची वाली एक्टिंग करनी है, जबकि यहाँ पे आपको रोजमर्रा वाली जिंदगी की बातें करनी होती है। तो ये मुझे समझ में आया पिछले कुछ सालों। कितना टाइम लगा आपको ट्रांजिशन करने को और अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस दोनों मीडियम्स में? कम से कम 6 से 7 साल मुझे लगा, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी समस्या ये थी क्योंकि हम लोग बहुत रिहर्स करके आते हैं थिएटर में, बहुत तैयार होकर आते हैं, हर चीज हमको स्टार्ट टू एंड की आदत होती है। यहाँ पे क्या है कि कट हुआ, अच्छा चलिए फिर से करते हैं, कट हुआ फिर से, अच्छा यहाँ से पिकअप लेते हैं, अच्छा वहां से, वो एक मेंटल ब्लॉक था। आई थिंक वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वो क्राफ्ट डेवलप करते हो, जब आप सीख जाते हो कि अच्छा यहाँ पे वी स्टॉप एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। थिएटर एक्टर के लिए वो प्रॉब्लम होता है कि ओके लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग, फिर से शुरू करते हैं, फिर एंड तक जाएंगे। मैं आज भी कोशिश वही करता हूँ कि जो लंबे लंबे सीन्स हमें मिलते हैं, खासतौर पे जब मैंने पंकज के साथ सीन्स किए हैं, मिर्जापुर के हों या और भी महारानी के, हमने 5-5, 6-6 पन्नों के, 7-7 पन्नों के सीन्स किए, बिल्कुल थिएटर स्टाइल में किए, कि स्टार्ट किया एंड किया, 10 बार किया, पर स्टार्ट टू एंड किया, स्टार्ट टू एंड किया, उसमें बहुत मजा आता है। पर हर बार आप स्क्रीन एक्टिंग में वो आपके पास प्रिविलेज नहीं होती, उस तरह के एक्टर्स नहीं होते, शायद उस तरह का टाइम नहीं होता, उस तरह की रिसोर्सेज नहीं होती, तो शायद आप वो अप्रोच नहीं रख सकते हर प्रोजेक्ट में। तो आपको यू हैव टू लर्न कि ओके वी हैव स्टॉप्ड हियर, ओके विल पिक इट अप एंड विल गो फर्दर, विल नॉट गो बैक इन द बिगिनिंग। सो वो आई थिंक जो स्विच है वो समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगा। और हर बार शिकायत यही होती थी कि अरे टाइम नहीं देते आप तैयार होने के लिए, ओके रिहर्स कर लेते हैं, 50 बार कर लेते हैं, 60 बार कर लेते हैं, जो कि थिएटर में कर पाते हैं। यहाँ पे यह है कि
बहुत सारी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो आपको अपने घर से ही करके आनी है। आपको वहाँ आपका को एक्टर मिलेगा लोकेशन पे, हो सकता है अगर वो बहुत कोऑपरेटिव है, और ज्यादातर एक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे तो वो आएंगे आपके साथ, शायद 10-20 बार 25 बार रिहर्सल करेंगे सीन की। अदरवाइज कई बार तो ऐसा होता है कि आप कैमरे के सामने पहुंच गए तब आपको आपका को एक्टर मिला। तो वो तैयारी आपको बहुत कुछ अकेले में करनी पड़ती है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है स्क्रीन एक्टिंग का, कि बहुत बार आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अपने को एक्टर्स के साथ या जो आसपास के लोग हैं उनके साथ प्रिपरेशन करने का। तो वो अकेले में करते हैं, फिर आप वहां पहुंचते हैं और पता लगता है कि डायरेक्टर के दिमाग में कुछ और है, एक्टर के दिमाग में कुछ और है, और फिर आप जाके वहां पे इम्प्रोवाइज करते हैं। एंड आई थिंक ग्रेट थिंग अबाउट स्क्रीन एक्टिंग इज दैट एडजस्टमेंट, दैट सेंस ऑफ एडवेंचर, कि यू डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है वहां पहुंच के, आपके को एक्टर्स या आपका डायरेक्टर एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद वर्कशॉपिंग हो चुकी होगी, आप अपने को एक्टर्स को मिल चुके होंगे, उनके साथ एक रिलेशनशिप, एक रैपो डेवलप हो चुकी होगी। पर कई बार ऐसा नहीं होता है। तो आप सीधा वहां पहुंचते। एंड फैंटास्टिक थिंग अबाउट सिनेमा एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग इज दैट सेंस ऑफ एडवेंचर, की आज मैं वहां जा तो रहा हूं पर वहां एग्जैक्टली क्या होने वाला है, मैं अपने सीन्स पढ़ चुका हूँ, मैं कई दफा अपने कैरेक्टर के बारे में सोच चुका हूँ, सारी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, पर आई स्टिल डोंट नो कि वहां जाके एग्जैक्टली क्या होगा। दैट सेंस ऑफ एडवेंचर इज व्हाट फैसिनेट्स मी स्क्रीन एक्टिंग। और जब आपको पता नहीं है तो फिर मैजिक होने का भी चांस बहुत होता है। बहुत होता है, बहुत होता है। और बहुत बार थिएटर एक्टर्स के लिए वही प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो प्रिपेयर होके, तैयार होके, सब कुछ इन कंट्रोल होना चाहिए तब जाके परफॉर्म करते हैं। जबकि स्क्रीन एक्टिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि आप छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो दैट सेंस ऑफ एडजस्टमेंट इज ऑल्सो थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी अडेप्टेबल टू द चेंज। बहुत बहुत बहुत, क्योंकि कई दफा मैंने देखा है कि अगर डायरेक्टर किसी एक्टर को, मेरे भी केसेस में बिल्कुल शुरुआत में रहा होगा, कि इतने रिजिड हो जाते हैं एक्टर्स कि वो डायरेक्टर कुछ उनसे चेंज करवाना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव प्रिपेयर्ड सो मच, इतना हार्ड वर्क करके आते हैं, उनको लगता है कि ये तो बड़ी प्रेशियस चीज है, क्यों बदल दूं या क्यों डिफरेंट करूं कुछ में, ये तो मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट कर रहा हूँ। पर अल्टीमेटली वो डायरेक्टर है, उसका कॉल है कि उसको एक पर्टिकुलर तरीके से कोई चीज चाहिए, और अगर आप वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। आप फर्स्ट टेक और 10वें टेक में एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने जरूरत से ज्यादा प्रिपेयर कर लिया है। तो वो डायरेक्टर को अगर डिफरेंस, वेरिएशंस या चेंजेस नहीं दिख रहे हैं परफॉर्मेंस में, तो फिर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम। और वो थिएटर एक्टिंग कर करके, रिहर्सल्स कर करके कई बार वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और एक चीज आई थिंक जो थिएटर एक्टर्स को सीखनी पड़ती है वो है हाउ टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आदत हमारी शुरू से एंड तक की है। तो वो इमोशन जहां छोड़ा था, वो पिच जहां पे थी, वो प्रोजेक्शन क्या था, वो हमेशा खटकता है कि यार ये शुरू से करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा मैं, कर पाऊंगी। पर वो बीच में अगर जब छोड़ा जाता है, बोलते हैं कि अच्छा यहाँ से पिकअप, तो वो लगता है अरे कैसे करेंगे। तो आई थिंक वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक ट्रांजिशंस। पर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे थिएटर एक्टर्स को देखा है जिनको सालों साल बहुत तकलीफ हुई है, वो बिल्कुल एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाते। वो आई थिंक वो मेंटल ब्लॉक है, वो जितना ज्यादा स्क्रीन का काम करेंगे धीरे धीरे शायद वो चेंजेस आएंगे। बट आई थिंक आजकल के नए जो भी थिएटर और करके आ रहे हैं वो काफी जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं वर्सेस जो पहले था। आई थिंक अभी काफी लोगों को कैमरा की आदत हो गई है, जब से हमारे पास फोन्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम रील्स हो रहा है या यूट्यूब वीडियोस बन रहे हैं। आई थिंक बहुत लोगों को वो अब समझ आया कि कितना कंट्रोल करना है। आई थिंक वो स्विच थोड़ा इजी हो गया बिकॉज आप कंफर्टेबल हो गए कैमरा के साथ अब, और दूसरी सभी के पास कैमरा है। और मुझे एक चीज और ये भी दिखती है, जो नजर आती है, जो मैं महसूस करता हूँ कि आजकल यंगस्टर्स जो है, बिल्कुल यंग लड़के, 16, 17, 18 लड़के लड़कियां जो है, वो बहुत कॉन्फिडेंट,
वो सेंस ऑफ एक्सपोजर है कि क्या है, उन्होंने जिंदगी में इतनी सारी चीजें देख ली हैं, पढ़ ली हैं, सुन ली हैं कि उनको बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर बहुत पहले ही हो जाता है। जबकि जब मैं निकला अपने कॉलेज से तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब आज की तारीख में वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को देख के सुन के आते हैं। और आजकल थिएटर भी बदला है, थिएटर भी बहुत कुछ रियलिस्टिक जोन में धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि अब हम बहुत ही इंटीमेट थिएटर स्पेसेस में परफॉर्म करते हैं, 50 कैपेसिटी, 40 कैपेसिटी। तो अब धीरे धीरे एक्टर्स को भी समझ में आ रहा है कि भाई इस तरीके से भी हम एक थिएटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वो आई थिंक चीजें उस तरफ रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस की तरफ भी इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस स्पेसेस भी, जो सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस स्पेसेस हम बोलते हैं, उनके आगमन की वजह से भी काफी कुछ वो चेंजेस आए। दूसरा ये कि आजकल एक्टर्स बहुत कुछ देख के, पढ़ के, सुन के ऑलरेडी आते हैं, भले ही वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ना करके आए। उन्होंने ऑलरेडी इतना सिनेमा देखा होता है, उन्होंने ऑलरेडी दुनिया भर का लिटरेचर, शायद अगर शौकिया हो तो पढ़ा होता है, कि उनको काफी कुछ चीजों की नॉलेज बहुत पहले से ही होती है। इसलिए वो आई थिंक वो अडेप्ट सेंस ऑफ, और इंस्टाग्राम का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, जिसको देखिए पूरे दिन वो वीडियोज ही बना रहा है, रील्स ही बना रहा है, तो ऑलरेडी दे आर वेरी कंफर्टेबल एज फार एज द कैमरा लेंस इज कंसर्न। उनको पता है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरे प्रोफाइल का क्या इशू है, उनको कैमरे पे अच्छा दिखना कैसे है, कितना बोलना है, कितना करना है, कितना एक्सप्रेस करना है, दे ऑलरेडी नो ऑल दैट। वो हमें जीरो से सीखना पड़ा था जब हमने थिएटर से ट्रांजिशन करना शुरू किया, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है। और कमाल के एक्टर्स आजकल आपको बिल्कुल शुरुआत में ही दिखने लगते हैं, जो कि पहले शायद उतना नहीं होता था। Possibly. तो गौतम, Anything? we have questions. अगर आप नीचे देखेंगे on the question mark, आपके पास कुछ questions हैं. So is it okay if I can share? हाँ, जो भी. Yeah, sure. Characterization कैसे करते हैं? Can you please tell us? That is one of the questions. बाप वो तो एक, उसके लिए एक अलग सेशन लगेगा, पूरा सेशन जाएगा उसमें। हाँ, कि कैसे है ना सर जी। That will be a separate talk. Sure. Maybe where... one little line on it will be great. Just I don't know. Just to tell the person, yes, your question is getting addressed. So सवाल ये है कि कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जी, राइट? If I have understood it. Yes. Okay. मेरे लिए सबसे ज्यादा देखिए, हमारे यहाँ पिछले 15-20 सालों में जिस तरह की स्क्रिप्ट हम लोग को मिलती थी, ज्यादातर हमें इंफॉर्मेशन पूरी तरह से दी ही नहीं जाती थी कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें मिलते थे, 2 सीन, 3 सीन, 4 सीन, ओटीटी के आने की वजह से शायद हमें थोड़ा बेहतर कैरेक्टर्स मिलने लगे, बड़े रोल्स मिलने लगे, जिसमें स्कोप काफी बढ़ गया। तो कैरेक्टराइजेशन की जो जगह होती थी हमारे पास, वो ये होती थी कि भाई डायरेक्टर साहब क्या चाहते हैं, उनका ब्रीफ क्या है, उन्होंने कितनी इंफॉर्मेशन मुझे दी है, फिर वो मैं अपने लाइफ में जाके पीछे मैं देखता था, सुनता था कि अच्छा इस तरह का इंसान शायद मैं मिला था उसको, उसके ये पर्क्स थे, उसकी इस तरह की बोलचाल थी, उसका इस तरह से चाल ढाल थी। तो वो बहुत कुछ हवा में होती थी, वो सब बातें बहुत सॉलिड ग्राउंड पे वो नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती थी और टाइम भी नहीं होता था। कई बार तो सेट पे पहुंच गए और वहां बताया गया कि भाई ये करना है आपको, तो आप कैरेक्टराइजेशन क्या करोगे? आप कैरेक्टराइजेशन तभी करोगे जब आपके पास पूरा प्रॉपर ब्रीफ हो, उसके बारे में बताया गया हो, और वो कहानी में क्यों है, कहानी में क्या कर रहा है, और कहानी में उसके साथ क्या हो रहा है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप कैरेक्टराइजेशन हवा में ही कर सकते हो। तो कैरेक्टराइजेशन मुझे लगता है कि जब तक आपको उसके इन एंड आउट्स ना पता हो कि कौन है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, करता क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसको पसंद क्या है, उसको नापसंद क्या है, ये फैमिली हिस्ट्री क्या है उसकी, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं है तो वो कहानी में कर क्या रहा है वो तो एज ए ले पर्सन कर सकता है, बट वो कैरेक्टर नहीं कर रहा होगा, वो एक्टर कर रहा होगा वो सारी इंफॉर्मेशन ना होने के बाद। अगर वो सारी इंफॉर्मेशन है तब शायद वो एज अ कैरेक्टर धीरे धीरे उसको अप्रोच करेगा और फिर वो परफॉर्म करेगा। आई थिंक दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर द कैरेक्टराइजेशन। दूसरा ये होता है कि आप जो कहानी है उसको आप 50 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, फिर आपको धीरे धीरे वो पॉइंट्स दिखने लगते हैं, वो चीजें कहानी में दिखने लगती हैं कि अच्छा इसकी वजह से ये किरदार ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा हो गया है, और इसकी वजह से इसने इस तरह की हरकत की या इस रिलेशन में इस तरह से उसने बिहेव किया। तो मुझे लगता है कि जो आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको स्क्रिप्ट मिली है और आप उसको पढ़ पा रहे हैं, आपको पढ़ने का वक्त मिला है, उस पर आपको सोचने का मौका दिया गया है, तब आप शायद कैरेक्टराइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो तरीका है, जो मैं कैरेक्टराइजेशन तो नहीं करूंगा, बट हाँ स्क्रिप्ट की स्टडी जो मैं कर पाता हूँ जब मुझे मिलती है, आमतौर पर अक्सर नहीं मिलती पर अगर जब मिलती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको इतनी बार पढ़ पाऊं, इतनी बार उसको स्टडी कर लूं कि मैं 100-200 सवाल पूछ पाऊं मेरे राइटर को, डायरेक्टर को, कि भाई ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऐसा किरदार है, ये इसकी जर्नी है, इसका ये बैकग्राउंड है, और शायद ये आगे जाके इस तरह का हो जाएगा। तो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार उसको रिपीटिशन में पढ़ना, फिर वो अपने सीन्स को, इंडिविजुअल सीन्स को पढ़ना, किस कैरेक्टर के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसकी केमिस्ट्री है, क्या रेपो है, ये सारे सवाल आपके मन में उठते हैं उस स्टडी को करने के बाद। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद कोई जवाब देने वाला मिल जाता है, नहीं तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं और फिर वो जाके सेट पे आप परफॉर्म करते हैं। अगर आपके डायरेक्टर को बहुत इंटरेस्ट है आपके कैरेक्टर में तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, तब आपको सारी प्रिपरेशन अपनी बगल में धर देनी चाहिए और वो करना चाहिए जो आपका डायरेक्टर बोल रहा है। तो आई थिंक कैरेक्टराइजेशन, जैसा कि गौतम ने कहा, कि पूरा एक अलग ही डिस्कशन है, टॉपिक है जो मुझे जब भी कोई एक्टर्स पूछते हैं, मैं एक चीज बोलता हूँ कि हर एक्टर को बहुत क्यूरियस होना चाहिए। राइट। हर एक्टर को बहुत ऑब्जर्वेशंस उसके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको आपके आसपास की जो इंटीमेट सोसाइटी है, आपके जो लोग हैं, आपके आसपास के लोग को आप जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना समझोगे, जितना आप इंटरैक्ट करोगे, आपकी निजी दुनिया में जितने इंटरेक्शंस होंगे आपके, उतना आपको लोग समझ आएंगे। और फिर अगर आपको एक कैरेक्टर मिलता है जो इज क्लोज टू, जो आप ऐसे टाइप के इंसान को आप मिल चुके हो और समझ चुके हो कुछ हद तक, तो वो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक, और इसीलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आप कोई भी एक्टर हो वो ट्रैवल जरूर करे, बहुत लोगों से मिले, वो नए नए कल्चर्स, अगर अब्रॉड नहीं जा सकते हो तो हमारा देश ही इतना डाइवर्स है, इतना बिखराव है हर जगह, कल्चर इतना डिफरेंट है, लैंग्वेजेस इतनी डिफरेंट है, हमारी खाना इतना हर जगह का अलग अलग है एक दूसरे से। हम अगर अपने देश में ही घूम घूम के देख ले थोड़ा बहुत भी अपना देश, तो मुझे लगता है लोगों को मिले, लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, आपको समझ आएगा कि आपके दुनिया के बाहर की दुनिया कैसी है, एग्जिस्ट करती है, कैसे हैं। जी हाँ, आपका वर्ल्ड व्यू बढ़ेगा, आपको ह्यूमन नेचर समझ जाना मेन है। आपको बिल्कुल, जितने ज्यादा लोग के साथ आप इंटरेक्ट करोगे उतना आपको ह्यूमन नेचर के बारे में आइडिया आएगा और आप उसको अप्लाई कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर के लिए जो आपको मिल रहा है। जी, और मैं दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो एक्टर्स बनना चाहते हैं वो बहुत प्रोटेक्शन में जीते हैं, वो चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, रिलेशंस में हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, वो बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्रिविलेज बैकग्राउंड भी हो सकता है उसकी वजह, वो बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो मतलब एक्सपीरियंसेस नहीं करते, वो एडवेंचर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कई बार तो बहुत सारे किरदार आपको अंदर ही मिल जाते हैं अपने, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव किया था, आप किसी खराब सिचुएशन में फंसे थे तो आपने उसके साथ कैसे डील किया था, किस रिलेशनशिप में आपने किस तरह से बिहेव किया था। अगर आपने वो सब एक्सपीरियंसेस नहीं किए, इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो आप बेहतर एक्टर बनने की तरफ चलते रहते हैं, क्योंकि शायद आप एक्सपीरियंसेस, अनुभव बटोरते जाते हैं रास्ते में। पर अगर आप घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं,
आप घर के अंदर ही रह रहे हैं, सिर्फ आप यूट्यूब या आपने वर्ल्ड सिनेमा ही देखा है, या फिर आप पर्टिकुलर डायरेक्टर की ही सिनेमा को देख के सोच रहे हो कि बस यही एग्जिस्ट करता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ आप अच्छा सिनेमा जो लगता है वो भी देखिए, खराब सिनेमा लगता है उसको भी देखिए, आप दुनिया भर की चीजें देखिए, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। क्या पता कल को जो आपको खराब लग रहा था वही करके शायद आप कुछ बेहतरीन कर जाए। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंसेस जितना जहां से बटोर सकें आप बटोरें, और वही एक्सपीरियंस बहुत जरूरी जी है जी फॉर एक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, और घर फॉर से बाहर राइटर, निकलना बहुत जरूरी है, डायरेक्टर, और घर से बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है। मैं जरूरी। कई अपने फोन एक्टर दोस्तों को देखता हूँ वो बंबई से बाहर निकलते ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई बाहर निकलो, थोड़ा देखो लाइफ में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। आई थिंक उससे कुछ मिल जाएगा और शायद आगे आपके काम आएगा वो। या जी हाँ डीना, आई थिंक दिस वाज काफी मिल गया इसमें कैरेक्टर के सवाल के लिए, आई थिंक सो। as in you're very right, हमें एक और शायद सेशन सिर्फ कैरेक्टराइजेशन पे करना चाहिए। there's a lot to talk on, completely agree. I put this next question, it is again around the same topic, so in case is there something मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन डाल दिया है कि 2 major difference in theater acting and camera, if there's anything more to add, so then we can add to this question, otherwise I can move to the next question. इसमें मतलब व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि और मोर अबाउट दैट सेम सिनेमा वर्सेस थिएटर Same, if there is anything more that we can move to the next topic. If we have more or less, we've spoken a lot on it, but the question just came up. Maybe they have missed some part of it. That 2 points. If you had to give it just 2 points of difference between, as in, or things to keep in mind for theater acting versus film. आई डोंट थिंक वो इतना कंसाइज वे में। Correct. I think we explained, Pramod explained in great detail. I think so much he spoke about. So yeah. एक चीज और मैं सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ कि थिएटर में यू फोर्ज रिलेशनशिप्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक ही डायरेक्टर, एक ही राइटर, एक ही एक्टर, सेट ऑफ एक्टर्स कई सारे प्लेस में कई साल तक काम करते हैं, तो शायद दे डेवलप एंड दे फोरेज रिलेशनशिप जो कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, एंड दे फीड ऑन ईच अदर एंड दे एनरिच ईच अदर। सिनेमा या स्क्रीन एक्टिंग में ये कई बार पॉसिबल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ फैंटास्टिक एक्टर और देयर इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड अ टीम ऑफ फैंटास्टिक राइटर जो सालों साल एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम करते जाए। ऐसा बहुत कम होता है स्क्रीन में। आई थिंक ये एक बेसिक डिफरेंस है। एक्टर इसीलिए कॉन्फिडेंट होता जाता है थिएटर में मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे डायरेक्टर है, ये ही मेरा राइटर है, और मैं जानता हूं कि मैं किस प्रोसेस से जाऊंगा और कैसी मेरी जर्नी होगी। सो दैट एंटिसिपेशन इज ऑलवेज देयर। तो मुझे लगता है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप ऑल्सो बिकम्स, कई बार मुझे पता है कि स्क्रीन एक्टिंग में बाय द टाइम आई गॉट वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट विद पीपल हु जो मेरे साथ काम कर रहे थे, तब तक वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया। जब लगा कि अब मजा आना शुरू हुआ है, तब तक पता लगा वो काम ही खत्म हो गया और हम अपने घर पे, वो अपने घर पे। फिर उसके बाद 2-3 साल तक कोई बात नहीं, किसी से कुछ मुलाकात नहीं। तो थिएटर में ये होता है कि एक नाटक हो गया तो चलो अब दूसरे पे करेंगे, तीसरे पे करेंगे, तो वो एक ऑन गोइंग रिलेशनशिप वाली बात भी होती है। मैं गौतम तुमको जानता हूँ 2007 से, हमने आज तक काम नहीं किया दोबारा साथ में, तो बट बिकॉज आई लाइक यू एज अ पर्सन और मुझे लगता है कि यू विल मेक अ ग्रेट फिल्म मेकर, इसलिए आई कीप ऑन कॉलिंग यू। कभी भी हम लोग रास्ते में चलते उलते मिल जाते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज देयर इज एन एफर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। हम लोग इसलिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे शायद लाइफ को देखने का नजरिया भी कहीं ना कहीं होगा, कुछ तो सिमिलैरिटीज होंगी उसमें, इसलिए हम लोग मिलते हैं। तो वी हैव आई थिंक डेवलप्ड अ रिलेशनशिप जो कि प्रोफेशनल नहीं है, पर वो स्क्रीन एक्टिंग में बहुत बार नहीं होता। वो एक प्रोजेक्ट किया, इट्स वेरी इम्पर्सनल मुझे लगता है। तो वो फर्क एक और शायद मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कई बार ग्रेट पोटेंशियल, ग्रेट स्क्रिप्ट, ग्रेट कैरेक्टर वो उस जर्नी तक नहीं पहुंच पाता है, जस्ट बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंस एंड ईज डेवलप नहीं होता बिटवीन द राइटर्स, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स स्क्रीन एक्टिंग। ये एक मुझे थोड़ा मलाल भी है इसका। Okay, nice. Yeah, Dina. So we have one question which says, Sarji, what is improvisation according to director's point of view? मैंने screen पे question डाल दिया है.
I don't see any questions on the screen, by the way. Huh? Acha, okay. So the question is, what is improvisation according to director's point of view? The question is to me. मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, I guess so. Any one of you can choose to answer. What is improvisation? They got on your better place. Director, I'm speaking as an actor. I think you are better placed. हाँ, I mean, मतलब मैंने भी जितनी फिल्म्स कास्ट की है, there are directors जो चाहते हैं कि जो लिखा है उसी पे स्टिक करो, एक वर्ड यहाँ का यहाँ नहीं होना चाहिए. और फिर डायरेक्टर्स होते हैं जो एक फाउंडेशन होता है सीन का कि हाँ ये है, और इस पे अगर बिल्ड ऑन इट. कोई कैरेक्टर्स को लिखना थोड़ा टफ होता है तो बोलते हैं कि एक एक्टर के कास्टिंग के हिसाब से उसको बोलते हैं कि हाँ ये इम्प्रोवाइज कर लेगा और ये मैनेज करेगा. तो इट इज डिपेंड्स फ्रॉम डायरेक्टर टू डायरेक्टर, कौन कैसे चाहता है. हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स वांट टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट टू द टी, एंड समबडी लाइक अनुराग, अब ब्लैक फ्राइडे के टाइम मुझे याद है कि छोड़ देते सब थिएटर वाले एक्टर्स से, सब स्ट्रॉन्ग एक्टर्स, और थिएटर में आपको आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन भी सीख ही लेते हो आप खूब सारा. हाँ, तो एक जो जयपुर के होटल में वो लड़कों की फाइट होती है, जो लड़के जो भागे हुए हैं, उसमें वो अभी आप एक आर्ग्यूमेंट का सीन आप लिख नहीं सकते हो कि अगर फ्री फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट है जिसमें क्या से क्या हो रहा है. तो आई थिंक उसमें पंकज झा, आदित्य श्रीवास्तव और जितने भी सुपर थिएटर एक्टर्स जो भी थे, वो फाइनली 2 कैमरा के साथ शूट कर लिया, क्योंकि एक्टर्स इतने कड़क थे, सबने अपना इम्प्रोव करके एक बहुत बढ़िया सीन निकल के आया था. थोड़ा डिफिकल्ट होता है कट करना, बट सबको पता है कि हाँ मुद्दा ये है, इसी के आसपास रहिए और आपके डायलॉग्स इसी के आसपास रहने चाहिए. तो उसमें एक अलग ही मैजिक क्रिएट हो गया था आई थिंक. तो इम्प्रोवाइजेशन डिपेंड्स, मतलब अगर आपने बहुत थिएटर किया है तो आपको एक अच्छी एबिलिटी आ जाती है इम्प्रोवाइज करने की. राइट, यस. आई थिंक और दूसरी वजह मुझे ये भी लगती है कि कई बार थिएटर एक्टर्स के साथ ही वो प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि कई जगह अगर ऐसा डायरेक्टर मिल गया और जहाँ पे प्रिपरेशन करने का टाइम तो बहुत नहीं मिला, पर वो डायरेक्टर ऐसा रिजिड है जिसने बोला है कि आप एक शब्द भी इधर से उधर, पर आपने एक्टर को उतना टाइम भी नहीं दिया है कि वो आपकी स्क्रिप्ट को उतनी अच्छे से तैयार कर पाए. तो वहां थिएटर एक्टर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जनरली थिएटर एक्टर थोड़ा और मन लगा के, जान लगा के थोड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं एज फार एज स्क्रिप्ट इज कंसर्न. दूसरी बार कई बार वही थिएटर एक्टर बोलता है कि यार मुझे तो नाटक में लिखे पढ़े मटेरियल की आदत है, आप यहाँ मुझसे क्यों करो, आप मुझे बता दो ना क्या बोलना है, मैं बोल दूंगा. तो आई थिंक वो एडजस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है कि आप किस प्रोजेक्ट में आप कैसे एक्टिंग करने वाले हैं. क्या ये प्रोजेक्ट वैसा है जहां पे डायरेक्टर आपको वो लिबर्टी दे रहा है कि आप टेक इट एज अ वर्कशॉप सिनेरियो और अप्रोच इट एज एन इम्प्रोवाइजेशनल सिचुएशन, और फिर आप उस पर इम्प्रोवाइज कीजिए. तो वो एक बहुत ही कमाल की फैसिनेटिंग जर्नी होती है, पर वही कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग और डर जाते हैं कि यार मैं कुछ गलत ना कर दूं. मैं आई थिंक वो जजमेंटल हो जाते हैं अपने आप को लेके, जबकि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये है कि लेट गो ऑफ इट एंड सी. एक सिचुएशन में कुछ कैरेक्टर्स हैं, कौन कैसे बिहेव कर रहा है और कौन कैसे उनके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो इम्प्रोवाइजेशनल सिचुएशन होती है. और थिएटर एक्टर्स अगर वो समझ जाते हैं कि हाँ नोबडी इज गोइंग टू जज मी कि मैं खराब एक्टर हूँ, कुछ गलत हो गया, सही हो गया, तो आई थिंक दे गो कंप्लीटली बलिस्टिक. और वो क्या परफॉर्मेंस करके जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में, वो कमाल की चीज होती है देखते वक्त. पर वही है वो एक्सेप्टेंस, वो पता होना कि हाँ कितना लाउड जाना है, कितना कम करना है. वो अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद थिएटर एक्टर्स दे जस्ट फ्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इन अ improvisational situation. I have a very interesting question for both of you over here. यहाँ कहा जा रहा है कि हेलो सर, निखिल से है, आई एम गोइंग टू मुंबई ऑनलाइन एक्टिंग सीखने के बाद. उन्होंने एक्टिंग ऑनलाइन सीखी है और वो मुंबई जा रहे हैं.
तो क्या करना चाहिए मुंबई जाके? तो there is also the fact that people are learning through online acting. A little bit on that, and then of course what should be the next course of action for someone जो अभी online, क्योंकि online has become so big after the COVID, everybody has all kinds of methods and ways to receive training. तो काफी लोग शायद online train हो रहे हैं, उनके लिए आपका क्या message होगा? And it will be great to hear from both of you. Yeah, Pramod, what do you think about online acting schools? मुझे थोड़ा सा मैं डरा रहता हूँ इन सब मामलों में, क्योंकि आप मुझे कह सकते हैं कि ओल्ड स्कूल में मैंने सीखा ही है फ्लोर पर जाके अपने एक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ किसी चीज को बनाने में, सीखने में, किसी रोल को अप्रोच करने में। तो शायद आप मुझे उस मामले में ट्रेडिशनलिस्ट बोल सकते हैं कि भाई एक्टिंग तो यार एक्टरों के साथ बैठ के किसी रिटन मटेरियल के साथ, डायरेक्टर हो, राइटर हो, तब एक्टिंग की जाती है। या आप अकेले भी हैं तो भी आप अपने आपस में अपने ही द्वंद के साथ लड़ते हुए, उससे झगड़ते हुए एक्टिंग करते हैं। तो ऑनलाइन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है मामला, पर ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। पर मेरा ये मानना है कि जीवन में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपके काम आएगा। हो सकता है आज नहीं तो कल। और शायद ऑनलाइन एक्टिंग आप अगर सीख रहे हैं और आपको उसके बाद बंबई आना है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ऑनलाइन आपने सीख ली है तो अब थोड़ा ऑफलाइन जाके बंबई में करिए। हो सके तो कुछ वर्कशॉप्स कीजिए, कुछ थिएटर कीजिए, कुछ एक्टिंग कोर्सेज कीजिए, पर अब थोड़ा ऑफलाइन भी कीजिए। आपने एक बेसिक फाउंडेशन शायद ऑनलाइन का कर लिया है, तो अब ऑफलाइन भी कीजिए और फिर देखिए कि फिजिकली जब एक्टर्स साथ में होते हैं तो आप एज एन एक्टर कैसे बिहेव करते हैं। We have the last minute. Take on it. My take is beautifully put. I think acting isolation में तो नहीं होती है ना. You are always in a group when you are performing. So I think Pramod gave a very good advice. So I think जो भी वो बंदा है, I think he should follow Pramod's advice. मुझे लगता है कि वेस्ट आपका कुछ भी नहीं गया है, आपने ऑनलाइन इस पे भी टाइम स्पेंड किया है, अच्छी बात है। एटलीस्ट आप अपना कुछ होमवर्क करके आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा वक्त अपने आप को ये मत सोचिए कि आते ही मैं मतलब ये सिनेमा वो OTT शुरू हो जाएगा सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रख के काम करें। आप यहाँ आके भी थिएटर वगैरह एक्टिंग सीखें, लोगों के साथ थिएटर करें। तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। Any closing remarks? We have 5 minutes, so if you can get some closing remarks from both of you for all our viewers today. Pramod, go ahead. Closing remarks, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं गौतम बंबई में रह रहे हैं, बीच में इनकी बड़ी खूबसूरत सी जगह है। मैं वो जगह देख के भी आया, कामशेत में। बहुत ही पॉजिटिव जगह है। वहां पे बहुत सारे यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जाते हैं, सीखते हैं। कुलविंदर बख्शीश उसको रन कर रहे हैं, उस वर्कशॉप को। बड़ी खूबसूरत सी जगह है। मुझे लगता है कि आधी एक्टिंग आप सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत जगह पे, खूबसूरत लोगों के साथ और थोड़ा बहुत भी काम करके बहुत कुछ सीखते हैं आप। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो जगह ऐसी है, बाहर जाके बंबई की भागम भाग से, उस इनसिक्योरिटी से बच के आप जब बाहर निकल के काम करते हैं तो उसका एक अलग मजा होता है। तो मैं तो कहूंगा कि गौतम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि अपनी उस जगह को खुला छोड़ दिया है यंग प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो आए वहां काम करें, कुछ सीखें। इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट इनिशिएटिव यू हैव स्टार्टेड। और मुझे लगता है उससे बहुत फायदा होगा हमारे यंग लोगों को। दूसरी बात यह है कि बहुत साल हो गए गौतम, सिनेमा बनाओ, कुछ अच्छा सिनेमा करोगे, मुझे लगता है कि यू विल मेक अ वंडरफुल फिल्म। और मैं हमेशा इसीलिए फोन कभी कभी उठा के कर देता हूँ या मिलता हूँ तो भैया कहाँ है सिनेमा, सिर्फ इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है जिनके ऊपर कि ये बनाएंगे तो कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम। थोड़ा सा डरावनी होती है ये सिचुएशन, पर आई थिंक
कुएं में कूदे बगैर पानी का तो पता नहीं लगेगा। तो वेरी ट्रू। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि स्क्रिप्ट इवन आई एम वेटिंग फॉर सिनेमा द डे माय स्क्रिप्ट इज रेडी व्हिच आई कैन डायरेक्ट। यस तो थैंक यू फॉर द वर्ड फॉर द प्लेस। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये एक प्लग इन होगा वर्कशॉप के लिए, नहीं, बट आई थिंक ये तो मुझे हमेशा से लगा है कि आई थिंक या जिसको भी आई थिंक सभी लोग जहाँ पे हो अपने आप को ट्रेन करो। आई थिंक मेरा एडवाइस हमेशा वही रहा है कि बॉम्बे आना हो तो महंगा होता है, यहाँ पे आना रहना यहाँ पे बहुत महंगा होता है, एक्टिंग स्कूल्स बहुत महंगे होते हैं। तो आपके शहर के आसपास या आपके शहर में कोई अच्छा थिएटर ग्रुप हो या कुछ हो, वो ज्वाइन करो, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करो और फिर बॉम्बे मूव करो। ये मेरी एडवाइस हमेशा रही है। जितना आप ट्रेन करके आओगे उतना इजी ट्रांजिशन होगा जब आप बॉम्बे आओगे। उतना जितना वेल प्रिपेयर्ड होगे अपने होम टाउन में या विलेज में या जहाँ पे भी एक्टिंग या कल्चर का एक सेंटर हो, वहां पे थिएटर वेटर सीख के या जो भी करके आप ट्रेन करके आओगे तो बेटर होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज बॉम्बे बहुत महंगा शहर है। और या एंड अदरवाइज इट्स बीन फन। नया मीडियम इंस्टाग्राम पे ये करना, अभी तक जूम पे हो रहा था सब कुछ, तो थोड़ा पता था, अब तो ये कुछ नया है। तो आई होप it's you had a good response, Dina. Yes, I will switch on my video and my audio. Good response. Thank you so much. आपने अपना संडे इवनिंग हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को दिया, so I'm extremely grateful to you for that. Thank you. And thanks. We've had a lot of people, lot of comments, lots of comments. There are quite a few questions, but I've taken the questions जो इस टॉपिक के साथ थे। तो जो भी इस टॉपिक से थोड़े दूर क्वेश्चन थे उनको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। वी विल रिस्पॉन्ड टू देम सेपरेटली, बट ऑन द टॉपिक जो थे हमने सारे क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच प्रमोद जी, इट हैज बीन एक्चुअली अ ट्रीट टू लिसन टू यू। एंड गौतम, very much grateful to you for taking out. I know you were busy today evening. Thank you once again for taking out. Most welcome. Yeah. Thank you so much. Thank you. I'll see you soon, Gautam. Take care. Bye, Dina. Bye. Take care.